Nifty and SBI Life. So what was going on in Bank Nifty in particular? I'll just tell first. So it is like multiple confirmations were there. So in the order of sequence in which I go, I'll just tell. Okay. So price action wise, then we'll see indicators wise, okay, and then we see OI data wise. MK, can we record this session only because it is related to this bank nifty? Just if you can record this. Yeah, I've recorded it. I sometimes I don't know if the recording fails after doesn't get saved, but I'm trying to record it. Okay, fine. Thank you. Okay, so when I say price action, so I am usually checking multiple time frames. So 5 minutes to 1 hour, etc. ये सब इंडिकेटर हाइड कर देता हूँ. So this is like 5 minutes time frame. Okay, इसमें so if you see this was the price action. निफ्टी का मैंने एग्जांपल शेयर किया था. या आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर. उसमें बुलिश वो था वुल्फ वेव. आई शेयर्ड अ चार्ट yesterday and इसमें it was in this kind of a structure. This was on day before yesterday. Okay, overall ये ऐसे एक चैनल में चल रहा था. Okay, and so let me go one step out. Okay, give me a minute. So overall bank nifty was like in. Hello, Hello. Mohitji. I don't know. Are you speaking? Yeah, can you hear me? Am I audible? Yeah, you are audible. Yeah. Okay, I think some issue with at their end. So it was in rising channel, okay, and then it was in corrective channel. So what you see here is that today's candle, if we just ignore this long wick, then the green channel is the this green channel upper line is the resistance line, okay, price action wise from a higher time frame. Okay, and this was under my observation and to be bullish above this. And if we go to smaller time frame, so smaller time frame में this this kind of a pattern was there. चाहे आप इसको ऐसे देख लो, चाहे आप इसको ऐसा देखना चाहो, चैनल टाइप में देखना चाहो, इस टाइप में, कुछ इस टाइप में देखना चाहो, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट था. बट इट ओपन गैप अप टुडे. ओके, so there was no opportunity to play it from this breakout and then this rebound and then play the move. ये opportunity नहीं मिला क्योंकि वो गैप के साथ ही ओपन हो गया था, राइट. एंड देन इट वाज लाइक ये ऐसा एक शेप बना रहा था where it was trying to clear the day. This is from like from price action standpoint. But if now we activate, let me just मेलवर कसं दिसतं एज्युकेशन झेडपी सातारा ते अटेंड झालं आपलं लाव. uh, if you can go on mute if you are, don't have a question. आप म्यूट पे चले जाइए. Okay. तुम्ही ह्याच्यावर सुरू केलं असणार आहे. You have to mute. गुगल मीट आहे का? हो. त्याच्यामुळे जीमेल हे क्लोज करून जीमेलवर तुमच्या ह्याच्यावर करू. होणार. मनोज जी आप भी को भी म्यूट कर रहा हूँ. ओके. So where were we? So this is from price action standpoint. Okay, but this was the real move. यहाँ पे ये जो up move थी. But if you would have seen like my message was somewhere here when we were nearing the day high. Okay, यहाँ पे कुछ 12 सवा 12 बजे के अराउंड you would have noticed my message. So let me so what all things I was checking is कि सारा ड्राइंग्स में हाइड कर देता हूँ 2 मिनट के लिए. Okay. So if you see यहाँ पे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा. Let me do bar
बार रिप्ले ऑफ टुडेज डे। एक सेकंड, आज की एक्सपायरी भी इसमें दोबारा डालनी पड़ेगी मुझे। तो ये जो है ना, ये परसूट ऑफ हैप्पीनेस एक इंडिकेटर है, बट इसमें आपको बस पर्पस इसका समझाने का ये है कि throughout the day we had a bullish bias, and the reason for that is one, using the yesterday's price action, and अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो this is like the second candle of the day where we are like all the private banks, especially HDFC, then ICICI, you see the contribution they have made, and even SBI. So you can see the contribution made by the big banks. Okay, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ या ना में बता दीजिए मुझे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि। Yes, yes. ओके, सो फ्रॉम प्राइस एक्शन, सर ये जो चार्ट जो है ये कैसे इंस्टॉल करेंगे? ये मेरा एक इंडिकेटर है जिसको परसूट ऑफ हैप्पीनेस बोलता हूँ। POH भी आपने ग्रुप में अगर कई बार डिस्कशन सुना होगा तो ये उसके ऊपर है। तो इसमें आप देखें ना, यहाँ पे शुरू में एडवांस डिक्लाइन बता रहा है कि 12 के 12 कंपोनेंट्स जो थे एडवांस में थे, और बोल रहा है कि सेल पुट, ये 43,500 ऐसे सेल पुट करने को बोल रहा है वो, कि पुट सेल करो। उसके बाद क्या है कि मैं इसको एक बार प्ले करके ना मैनुअली बार बाय बार रिप्ले कर देता हूँ। जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको एक बार वहाँ तक ले आता हूँ। तो अभी कहना है कि जैसे सेल पुट के बाद में ये बोल रहा है कि जैसे थोड़ा सा नीचे चला जा रहा है बैंक निफ्टी, ओके, आफ्टर फ्यू मिनट्स, तो वो बोल रहा है ऊपर से कॉल भी सेल करो ताकि प्रीमियम बैलेंस करने के लिए, स्ट्रैंगल में रहने के लिए। तो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, और मैं एक बार ऊपर यहाँ तक ले आता हूँ आपको 12 बजे तक, ठीक है, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था। आप अगर मेरा मैसेज भी पढ़ेंगे ना ग्रुप में, तो देयर इज एन इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, एंड आई एट दिस पॉइंट आई वाज होपिंग कि ये यहीं से ऐसे निकल सकता है ऊपर। दिस इज लाइक फ्रॉम इंडिकेटर। सो प्राइस एक्शन से मैंने आपको बताया और इंडिकेटर से मैंने बताया आपको। नाउ फ्रॉम डेटा स्टैंड पॉइंट क्या होता है कि पहले जैसे अभी क्या था, अभी जैसे 900 क्वांटिटी अगर आपको डालनी है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में, राइट, तो आपका डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्ट्राइक यू आर, आपका ऐसे लेट्स से 27-28 लाख मार्जिन लगता है, ठीक है। पहले लेवरेज मिलता था 10x लेवरेज, तो तभी मार्जिन बेनिफिट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब पहले 10x जब लेवरेज मिलता था तो सेम मार्जिन में हम लोग 9,000 क्वांटिटी इंसर्ट कर सकते थे। ऑफकोर्स रिस्की है, बट वो प्रोविजन था उस स्केल तक जाने का। पर अभी ये 1 डेढ़ 2 साल से चला गया है ये पर्टिकुलर, राइट। तो अभी क्या करना पड़ता है, जैसे अगर मेरे को मालूम है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है, या ऊपर मेरा ऐसा जाएगा मालूम नहीं, मतलब मेरा व्यू है बुलिश साइड पे, तो मेरे को 43,500, 600, 700, या एट द मनी 43,800 मेरे को वो सेल करना है। फॉर एग्जांपल हम नियर एट द मनी 43,800 जो हमने ग्रुप पे डिस्कस किया कि एट द मनी 4300 पीई को मेरे को सेल करने का, और मेरे को इसको सेल करूँगा 900 क्वांटिटी सेल कर पाऊँगा मैं इतने अवेलेबल मार्जिन में। तो इसका हेज मेरे को लेना पड़ेगा अगर मुझे और सेल करना है मार्जिन बेनिफिट के लिए, ठीक है, मार्जिन बेनिफिट। अब कितना कितना पास का हम लोग हेज लेंगे ना, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि हमारा हमको मार्जिन बेनिफिट कितना मिलेगा। तो यूजुअली लोग 2,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट से 2,500 पॉइंट तक का डिफरेंस लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप इसको 41,500 पी बाय करते हैं, ठीक है, जितना सेम क्वांटिटी जितना आप सेल कर रहे हैं उतना आप बाय कर रहे हैं, तो आपका यही जो मार्जिन है ये बहुत कम लगेगा, क्योंकि आपकी पोजीशन अब हेज हो गई है। परफेक्टली हेज नहीं है क्योंकि वो बहुत दूर का पुट बाय किया आपने जो कि 3-4 रुपए का होगा, और ये तो देख लेते हैं प्राइस।
को याद नहीं है। 43,800 पीई। ठीक है, 43,800 पी 12 बजे के अराउंड वॉज अराउंड 140 रुपीज़ के अराउंड। ठीक है, एंड 41,500 पी 12 बजे के अराउंड, दिस वाज अराउंड यहाँ पे कुछ 3 रुपए के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या ऑब्जर्वेशन थी कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, जैसे कि मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। ये यहाँ से मार्केट 43,730 से यहाँ पे आपका 43,800 तक आ गया, राइट। ये मार्केट वन साइडेड ऊपर जा रहा है, यहाँ 12 बज गए हैं, करेक्ट। तो आइडली क्या है, पुट के प्राइसेस कम होने चाहिए क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, राइट। तो 40, बट आप देखेंगे यहाँ पे ये जो दूर का ऑप्शन है ना 41,500, ये 12 बजे से देखिए ये 2.8 का आया और ये यहाँ तक गया, फिर 3.6 तक गया। इस इसका ऊपर आने का कोई पॉइंट नहीं है, करेक्ट। इसको कोई तो खरीद रहा है तभी ये ऊपर जा रहा है, राइट। इतनी दूर में तो कोई मार्केट जब ऊपर जा रही है और कल एक्सपायरी है, 41,500 तो आएगा नहीं कल, तो इसको कोई तो खरीद रहा है यहाँ पे। और इसको यहाँ पे भी देखो कोई और खरीद रहा है। जो जो चीज़ 2.5 रुपए की थी उसको वो 5 रुपए तक लेके गए। वो ये वो लोग खरीद रहे हैं जिनको ये सब सेल करना है। 43,800 सेल करना है, 43,900 सेल करना है, इवन 44,000 पे सेल करना है, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? हेलो Yes. हेलो हेलो एमके सर, जी, कौन सर बोल आप रहे बोल रहे हो कि मतलब मैं राम अवतार। हैं? हाँ, बोलिए। तो सर उस टाइम में 43,800 पे था, तो वो लोग 44,000 के भी पुट बेच रहे थे क्या उस टाइम? मतलब है ना, दे वर सो श्योर दैट अरे दे विल टेक इट टू। देखते हैं ना अजय, साथ में देखते हैं। मैंने स्ट्राइक चेक नहीं किए, साथ में देख लेते हैं। ये 44,000 का पुट का स्ट्राइक है। आपने मेरा डेव प्रो का वीडियो देखा है क्या, या वो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है क्या क्या है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मालूम है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको मालूम है तो इस कैंडल पे या इस कैंडल पे यहाँ वो कंडीशन हो गई फुलफिल, जहाँ से ये एक्चुअली इन द मनी स्ट्राइक है। तो इसमें हम्म, आपको ना इसमें आपको क्या है ना कि राइटिंग मिलेगी ज़्यादा। यहाँ से देखिए ये राइटिंग आपकी, ये ग्रीन लाइन जो है ना, ये ओआई की लाइन है। ठीक है, हाँ जी, मैं आराम से समझाता हूँ क्योंकि पीओआई है और नीचे वाला हाँ, मूविंग है। हाँ, नीचे वाला मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे हाँ जी हाँ जी, जहाँ पे ये सारी कंडीशन ऊपर पिवट के नीचे है, ईएमए के, वीवैप ईएमए के नीचे है, वीवैप के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है, आरएसआई भी डाउन है 50 से, और यहाँ पे राइटिंग इंक्रीज हो गई 145 145 150 से, करेक्ट। करेक्ट। तो कोई तो आ रहा है जो यहाँ पे राइट कर रहा है, ओआई बिल्ड कर रहा है, करेक्ट करेक्ट। हाँ जी हाँ, कोई तो राइट कर रहा है ना, ये लाइन ऊपर गया इतना, राइट ये राइट, प्राइस लाया है कोई, तो कोई यहाँ पे सेलिंग कर रहा है। बिल्कुल। और इतना सेलिंग करने के लिए, मतलब इन द मनी भी वो सेलिंग कर रहे हैं। हाँ वो तो श्योर श्योर ज़्यादा पैसा तो यहीं बनेगा ना। देखिए अगर आप यहाँ सेल करेंगे तो आपका ज़्यादा पैसा बनेगा। अगर आप 43, अगर सेफ करना है काम कि आप श्योर नहीं है, हाँ जाएगा शायद नहीं जाएगा, शायद साइडवेज होके जाएगा, राइट, रुक रुक के जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सेल यहाँ करेंगे सेल। ठीक है, राइट राइट, समझ गया अभी सर। यहाँ पे आपको 44 रुपये से 15 रुपये, मतलब कितने मिले, कुछ खास नहीं, 30 रुपीज़ मिले। 30 30 30 रुपए। हाँ, अभी आप यहाँ चेक हाँ, करेंगे तो आपको कितना मिलेगा सेम चीज़ का काम करने पे। यहाँ पे आप 200 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे 574 से 477, करीबन 100 रुपये के अराउंड की मूव मिलेगी तो ऑप्शन सेलिंग में, बिल्कुल करेक्ट। तो अभी क्या है कि ये जो correct, इसको सेल करने के लिए मेरे को मेरे पास मार्जिन लिमिटेड ही है, बट मेरे को चाहिए कि ऐसा लेवरेज चाहिए। अभी 10x लेवरेज तो नहीं मिलेगा, पर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको बाय कर लूँगा ताकि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट मेरी कम हो जाए,
एक मिनट, कोई ऐड होना चाहता है, इसको ऐड कर दूँ। करेक्ट। तो को तो मेरे मेरा को यही कोशिश रहेगा कि मैं हेज खरीद लूँ। So Mohit, Sanjay this is. या So this 41,500 P, which was increasing, people were buying it. So you had some way to capture it at around 12:30, 1 o'clock, 1:30. Were you able to capture it or नहीं सर, or you- ये वाला जो है ना, मैं आपको लेके जाता हूँ हेज पे। ये वाला ये हेज है, ठीक है। हाँ हेज, वो तो मैं समझ गया। हाँ बट ये जैसे रेट बढ़ गया, ₹2.5 से ₹5 हो गया, हाँ। एंड इसका ओआई भी बढ़ रहा होगा मे बी, बट ज्यादा नहीं बढ़ा, वो सेम ही है। नहीं, इसका ओआई इररेलेवेंट है सर, इसमें धक्का मुक्की चलती रहेगी। हाँ देखो चल रही है। बट नहीं, इसको बट आपने ये कब कैप्चर किया कि ये बढ़ रहा है? मतलब ड्यूरिंग द डे दिस थिंग हाँ, दिस थिंग लाइव वाज लाइव लाइव मार्केट सर, मेरा स्क्रीन पे सारे के सारे लगे रहते हैं। ये ऐसे अच्छा, सारे के सारे लगे रहते हैं। सारे लगे रहते हैं। हाँ, पूरे 500 के मल्टीपल में लगे रहते हैं, कॉल पुट। ठीक है। तो सर इतना ऑब्जर्व कैसे कर लेते हो यार आप इतने हाँ ज्यादा? कैसे तो कर लेते हो? अरे नहीं, आप लगाइए। ये क्या है सर, मार्केट ऊपर चल रहा है तो ये सब लाल होने चाहिए ना, पुट। ये सब लाल होने चाहिए। ओह, जब तो ये when हरे the हो put is जाएंगे red, तो आप कहोगे अरे ये हरे क्यों हो रहे हैं, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। हाँ करेक्ट। और कभी कभी क्या होगा ना, यहाँ पे मार्केट है, अभी मार्केट ऊपर गया नहीं है। ये लोग धीरे 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 भरते हैं पहले। हाँ, बढ़ते ठीक है। हैं, राइट, अब अभी आपको मैं गेम दिखाता हूँ इनकी क्या करते हैं फिर एंड ये। देन इट एक्सप्लोड्स। नहीं, ये अभी आपको इनका पूरा मैं एक बार गेम बताता हूँ क्या करते हैं। ये भरते हैं, प्लीज फिर वीक प्लीज गो हैंड्स को अहेड। आउट करेंगे। अभी आप देखना, ये नीचे आया मार्केट, यहाँ से आएगा, और ये बेसिकली कोटक को से प्ले की है। ये मार्केट यहाँ से नीचे लेके आई है वीवैप के आसपास। ठीक है। एवरेज प्राइस के पास आ गया ना डे पे अभी। हेलो। Oh, हाँ yes. जी, और कुछ वीकेंड्स भी बाहर निकल गए ज्यादा हाँ, उनका छोटा स्टॉप लॉस। जिसने जिसने यहाँ कॉल बाय किया कि अरे यार डे हाई ब्रेक हो गया, चलो चलो ऊपर जाएंगे अभी, तो उनका तो गया सबका स्टॉप लॉस। तो वीकेंड बार हुए, करेक्ट करेक्ट। प्राइस अभी डे के एवरेज पे आ गया, वॉल्यूम वेटेड एवरेज पे। सो अभी और भरेंगे। और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक में हुआ क्या है, ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ है। मैं आपको पहले ना बर्ड्स आई व्यू दिखाता हूँ, तब आपको पिक्चर क्लियर होगी। एक मिनट, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब ग्रुप में आप कभी पढ़ेंगे ना कि ये हमारे रडार में आ रहा है, ये हमारे एंटीना है। कभी आप मोहित जी को ये बात करते समझेंगे तो वो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में, ये क्या है, ये सेक्टर रोटेशन है सर। ठीक है। ये राइट हैंड स्क्रीन, लेफ्ट साइड पे मत देखिए अभी, सिर्फ राइट हैंड पे फोकस करिएगा। और ये डे एंड का स्नैपशॉट है। ठीक है। डे एंड में आपको सी एन एक्स फाइनेंस, मतलब फिन निफ्टी यहाँ दिख रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ दिख रहा है, और निफ्टी के प्राइवेट बैंक यहाँ दिख रहा है। ये ग्रीन सेक्शन क्या है, ये ग्रीन सेक्शन लीडिंग है। लीडिंग लीडिंग किस चीज़ में, मोमेंटम में और रिलेटिव स्ट्रेंथ में। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं आपको इसको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ अभी आज का दिन। जी जी सर। ओके Yes. तो अभी रिप्ले में जाएंगे। रिप्ले में ये देखिए, ये सुबह 9:30 पे ले गया मैं इसको आने दीजिए, और फिर वही 12 बजे के आसपास मैं लेके जाऊंगा आपको इसको। ठीक है। ये दिन भर ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये रियलिटी मेटल घूम घाम के नीचे जा रहे हैं अभी। ठीक है। और अभी बैंक निफ्टी यहाँ है। बैंक निफ्टी कहाँ है, ये लैगिंग से निकल के इम्प्रूविंग में जा रहा है। ये इम्प्रूविंग है, उसके साथ में उसका भाई फाइनेंस भी जा रहा है और प्राइवेट बैंक भी जा रहे हैं। सब तीनों एक साथ जा रहे हैं। ठीक है। अब और आगे करता हूँ। ये इनकी एंट्री हो गई, यहाँ पे हो गई। हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे आपको मेरा मैसेज आ गया होगा, और ये अंदर घुस गए हम।
ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे में पूरी मार्केट में एक ही चीज़ चली, वो है ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, सीएनएक्स फाइनेंस। चाहे आपने फिन निफ्टी लिया होता, चाहे आपने बैंक निफ्टी लिया होता, चाहे आपने एचडीएफसी बैंक लिया होता, आपके बने होते। ठीक है, अभी एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, मैंने बोला भी था कभी भी एचडीएफसी बैंक जब राइज कर रहा हो तो गलती से भी शॉर्ट तो करना मत। ये देखिए इसमें वन साइडेड ऐसी मूव थी। ठीक है, अभी इसमें ये तो आपको मैंने सेक्टर दिखाया, तो अभी क्या रहता है, सेम सेम एनालिसिस चलती रहती है कि अभी मालूम चल गया हमको बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक तेज हो रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं, तो कहीं तो मोमेंटम बनेगा, इन्हीं में ही बनेगा। अभी इनमें अभी मान लो मेरे को बैंक निफ्टी इंडेक्स में काम नहीं करना है, मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है, तो उसमें फिर क्या है, सेम अपना इसमें भी लगा रहता है। ऐसा सारे सेक्टर्स का लगा, ये ऊपर देख रहे हो ना, ये सारे सेक्टर्स का लगा रहता है। ठीक है, अभी इसका मैंने स्टार्ट किया इंट्राडे, इसको मैं आगे ले जाता हूँ। अभी आप यहाँ देखना, ये है आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, या एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अब ये बंद हो गया, बहुत फास्ट मूव किया। एक मिनट में दोबारा चलाना पड़ेगा। मेरा पॉइंट समझे आप, दिखाने का क्या था? जी जी। देखिए ये मॉर्निंग में है, ये मॉर्निंग 9:30 के अराउंड का व्यू है। ठीक है, अब मैं ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, अब मैं इसको कैंडल बाय कैंडल आगे करता हूँ। आप यहाँ पे देखना, प्राइवेट बैंक, ये एचडीएफसी बैंक यहाँ है, ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये इम्प्रूविंग से लीडिंग में जा रहा है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक, ये कोटक बैंक है, ये आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक ऑलरेडी इम्प्रूव लीडिंग कैटेगरी में है। ठीक है, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को छोड़ दीजिए, कैन बैंक को, ये पीएनबी, इनको छोड़ दीजिए, इनका वेटेज नहीं है इतना बैंक निफ्टी में। ठीक है, अभी जैसे हम दिन में आगे बढ़ रहे हैं, इसको आगे कर देता हूँ, तो जैसे हमने वहाँ पे देखा प्रीवियस एग्जांपल में, सीएनएक्स फाइनेंस, बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक लीड इम्प्रूविंग से लीडिंग में जा रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे देखिए आप, एचडीएफसी जो है वो लीड कर रहा है, और एचडीएफसी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। करेक्ट, कुछ 24-25% कुछ तो ऐसे वेटेज होगा। और डे एंड के अभी इसको मैं आगे चलाता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, ये जो शेकआउट किया ना यहाँ पे, ये इन्होंने कोटक के थ्रू किया, कोटक बैंक, ये वो शेकआउट था ये। ठीक है, ये जो उसके बाद ये भी ऊपर गया, फिर थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक में भी था, कि थोड़ा सा फ्लैट ही था ऑलमोस्ट, ये आईसीआईसीआई बैंक भी, ये भी यूनिडायरेक्शनल ऊपर गया। करेक्ट, सो बेसिकली क्या है, हमने क्या देखा, पहले तो हमने कल का और आज के इंट्राडे प्राइस एक्शन से समझ लिया, बट क्या हुआ कि सुबह गैप अप ही हुआ है, तो हमें मूव खेलने को मिली नहीं, तो वी हैव टू वेट अनदर सेटअप, कि प्रीवियस डे का हाई निकाल रहा है, या कोई अनदर पैटर्न बन के निकल रहा है चैनल, या कोई तो पैटर्न होना चाहिए, टेक्निकली पैटर्न होना चाहिए, राइट। फिर हमने देखा इंडिकेटर्स, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल सेक्टर्स, सबसे पहले लीड, सबसे बेस्ट सेक्टर कौन सा है वो हमने चेक किया, और उस बेस्ट सेक्टर पे हमें ये पता चला कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये सारे प्राइवेट बैंक जो है लीड कर रहे हैं। करेक्ट, ये हमको सारी एनालिसिस 1212 पे ही होगी। अब ओआई डेटा पे हमने देखा कि 41,500 को कोई तो खरीद रहा है, ऐसे ही बाकी के स्ट्राइक्स भी खरीद रहे थे ये लोग। हेलो, ये देखिए, ये हेलो, 45, हाँ बोलिए। हाँ, I was saying, see, you sent message later around 1 or 1:15 around, you sent message कि look for 43,900, then above 44,100. So how you, where you saw that things coming in this one by one? क्या एक बार मेरा मैसेज क्या था सर, दोबारा रिपीट
हाँ, मतलब पहले आपने बोला था कि 48,800 के सी पे वॉच करो करके, हाँ then within some time you said 43,900, then you said 44,000, then नहीं 44,100. नहीं वो था कि 43,800 की सी वॉच करना है ताकि उसको हाँ बाई करना है। और बैंक निफ्टी 40, मैं ये बता रहा था कि अभी बैंक निफ्टी 43,800 पे एटीएम था। अभी बैंक निफ्टी 43,900 निकल गया, 44K निकल गया, 44,100 भी निकल गया। हाँ, तो वो पॉइंट मतलब हाउ यू सॉ इट कमिंग, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो होने के पहले आपने बोला था, मतलब हाँ बिफोर ना, इट वाज 44,100। सर ये इतनी देर से मैं ये सारा प्रोसेस जो समझाया वो वही हाँ तो है ना, कि हाँ, पहले हमने प्राइस एक्शन से व्यू बनाया, हमने इंडिकेटर से भी फर्स्ट टू देखा। पॉइंट्स आई गॉट, आई एम सेइंग फ्रॉम द ओआई पर्सपेक्टिव, आपने कुछ उसमें देखा या कुछ और हाँ, ये ओआई से किया? देखा, ओआई से देखा। हाँ सो ओआई में क्या देखा कि क्या होता है ना सर, मार्केट को नीचे जाना रहता है ना अभी, कभी कभी एक्सपायरी डे को छोड़ देना, ये चीज़ एक्सपायरी डे में शुरू में मॉर्निंग या अर्ली आफ्टरनून तक में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या है ना कि सुबह सुबह सब लोग हेज खरीदते हैं। ठीक है, आप कभी कभी उठ के देखिएगा कि 9:15 9:20 के बाद तब मार्केट का कैंडल, फर्स्ट कैंडल सेटल होता है। उसके बाद सब लोग अपना अपना हेज लेके अपनी अपनी पोजीशन डालते हैं। तो उस टाइम पे ये हेज वाला कॉन्सेप्ट मत देखिएगा। पर मान लीजिए 12 बजे, 11:30 बजे कोई सिंगल साइड, मान लो कॉल साइड में अभी मार्केट है 44,000, करेक्ट, और 46,000, 45,500, ये जो हेज है, जो एक्चुअली में मार्केट वहाँ जाने वाला नहीं है, वो 2 या 3 रुपए के चल रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो स्पाइक हो रहे हैं, 3 रुपए से 4 रुपए, 4 रुपए से 4.5 रुपए, जैसे इस केस में ये गया है ऊपर, राइट, 2.5 रुपए से। मार्केट ने नीचे जाना नहीं है, बट ये कोई खरीद रहा है। वो कौन खरीद रहे हैं? ये जो बिग प्लेयर्स रहते हैं या इनके एल्गोज रहते हैं, वो वो लोग खरीदते हैं इसको, करेक्ट। तो खरीदते इसलिए मार्जिन बेनिफिट के लिए। सो ओआई से आपको सबसे पहले, इवन बिफोर द मार्केट हैज मूव्ड, आपको इंडिकेशन लग जाया करेगा कि कोई तो दूर का हेज खरीद रहा है, नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं उसको, राइट। प्राइस तभी ऊपर जाएगा ना जब भी कोई खरीदेगा उसको। यस यस करेक्ट। जब तक कोई नहीं खरीदेगा प्राइस ऊपर जाएगा नहीं। कोई क्यों खरीदेगा इतनी दूर का ऑप्शन, वो भी एक्सपायरी से जस्ट पहले? क्योंकि उसको मालूम है कि ऊपर लेके जाना है प्राइस या नीचे लेके जाना है प्राइस। तो अब अगर अभी आपको दूर के ओटीएम, फिर मैंने, अगर आपने मेरा मैसेज देखा होगा कि ये सारे दूर के ओटीएम जो है वो फूल गए हैं, उनको सेल कर सकते हैं, जैसे कोई 4 रुपए का है, कोई 5 रुपए का है, एकदम फ्री मनी है, वो जीरो होने हैं सब। हाँ करेक्ट करेक्ट, यू आर गिवन अ बंच ऑफ ऑल। उसके बाद ये देखिए अभी 2, 2.5, 3 रुपए, ये सब क्लोजिंग आवर्स में सब वो छूट गया। जो भी अभी भी कुछ लोग होंगे जो ओवरनाइट कैरी करके गए हैं। अगर आप डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये तो पहली पहली बात तो ये स्टैटिक डेटा है, ये एंड ऑफ डे डेटा है, जिसमें ये रेड वाले जो है ना ये कॉल है, ग्रीन वाले पुट है। तो ये इतना सारा कॉल अनबाइंड हुआ है। कहाँ कहाँ से अनबाइंड हुआ है? 43,600, 700, 800, 900, इवन 44K पे। ये कॉल का पुट कॉल का टावर एकदम गिरा डाला, और पुट का सॉलिड है, करेक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखें एक्सपायरी के पूरे स्नैपशॉट लेवल पे, आपको दिखेगा कि 43,500 से लेकर के 44,000 पूरा पुट जो राइटर्स है, पूरा उनका कब्जा है। दे हैव द होल्ड ऑन दिस होल एरिया एट द एंड ऑफ द डे, आई मीन वेयर मार्केट हैड स्टॉप, करेक्ट। अभी ये जो लोग राइट किए हैं, ये लोग कुछ तो हेज बाय किए होंगे ना सर। यस यस यस। तो वो जो जब वो हेज बाय कर रहे थे ना सर, तो वो दूर का हेज बाय करते हैं, 3 2 रुपए, 3 2 रुपए, जिससे खास फर्क पड़ता नहीं उनको, उनको बस मार्जिन रिड्यूस करना है। और बहुत सारे लोग इंट्राडे में ही छोड़ के चले जाते हैं, ओवरनाइट वगैरह रिस्क नहीं होते। फॉर एग्जांपल, हम लोग 43,800 स्ट्राइक की बात कर रहे थे ना, तो मैं यस 43,800 पे चलते हैं। देखिए 43,800 कॉल, तो ये 43,800 है।
खैर इसमें तो OI वैसे ही अनवाइंड हो गया, तो इसमें नहीं आपको दिखेगा। 43,800 पुट देखते हैं। 43,800 पुट, ये 43,800 का पुट है जहाँ पे राइटिंग हुआ है, वहाँ वहाँ से अनवाइंड हुआ है, तो वो लोग कोई ना कोई यहाँ राइट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉल बायर हो, मैं कॉल बायर नहीं हूँ, मेरे को है कि पुट सेल करने में सेफ्टी लगता है, राइट? तो मैं इसको राइट करूंगा, तो मैं इसको अगर OI इंक्रीज कर रहा हूँ, बट मुझे पता है अभी मेरे जितने बनने थे आज के बन गए, अभी बंद करते हैं दिन 3:15 3:20 के आसपास, तो ये OI इंट्राडे वाले ये यहाँ से निकल जाते हैं लास्ट में। हाँ हाँ आप ये रोज रोज ऑब्जर्व करिए, रोज का यही सेम स्टोरी होता है। अच्छा तो अभी ये पॉइंट क्लियर हुआ ना, ये OI के डेटा वाइज। तो यस क्लियर ये तो क्या है ना कि सर मेरे को मालूम है, तो बहुत फास्ट कैच अभी डे इन डे आउट देख देख के पता है। तो ये गूगल शीट भी ऐसे चलती रहती है। अभी ये गूगल शीट में 139 पे बोल रहा है ये, कि जो भी लॉजिक है इसमें कि 43,800 कॉल बाय, बट हमारा जो डेव प्रो वाला लॉजिक है 43 पहले पुट सेल में अब वो 150 को अराउंड ये हुआ। हाँ एक सेकंड, यहाँ क्यों नहीं रहा, ये यहाँ पे OI स्टार्ट इंक्रीज हो गया अराउंड 140, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे इंक्रीज होने लग गया सारा कुछ, और उसमें 150 के अराउंड हुआ था कॉल बाय वाले में। 43,800 कॉल, 43,800 43,800 में यहाँ से अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे पिवट के ऊपर चला गया था ये, इस कैंडल के क्लोजेस पे एक 50 एक 55 कुछ भी ले लीजिए, राइट? उसके बाद ये 160 वाला ऑप्शन 360 हो गया था, राइट? सो ये था बैंक निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी में कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज गए। मैं आपको फिर SBI लाइफ फटाफट से बता दूंगा, वो भी सब सेम ही कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या देखा, प्राइस एक्शन क्या देखा, इंडिकेटर क्या देखा उसमें, और ये जो हमारा रहता है इस पे भी ये देखते रहते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी बताता रहता है आपको पुट सेल करना है। जब CPR के ऊपर है, हम लोग का मोमेंटम स्ट्रांग है, डे हाई के ऊपर है, एडवांस 12 है, डिक्लाइन कुछ नहीं है, इंडिकेटर्स की वजह से भी वॉल्यूम भी आ रहा है, पुट सेल भी आ रहा है, तो उसको मैं एंड ऑफ द डे ये ले जाऊंगा। तो खैर पता ही है हमें एंड ऑफ डे क्या हुआ है, पर ऐसा एनालिसिस रोज करना चाहिए अगर कोई बहुत सीरियसली फुल टाइम करता है बेसिकली। मैं तो फुल टाइम नहीं, और फिर भी वीकेंड पे तो करना चाहिए, राइट? इतना बड़ा मूव मिस नहीं करना चाहिए। कभी कभी इतना बड़ा मूव नहीं आएगा, कभी कभी आएगा, कभी अभी जैसे हम लोग जब यहाँ थे ना, तो यहाँ पे भी फिर से स्पाइक हो रहे थे आउट ऑफ द मनी पुट। मतलब कोई यहाँ पे भी बोल रहा था कि यार अभी मेरे को और भरो, अभी मेरे को और पुट बाय चाहिए, क्योंकि वो लोग और राइड करने के लिए रेडी थे। तो उसके, हेलो हाँ जी बोलिए। मोहित जी, अच्छा जैसे अपन आउट ऑफ द मनी पुट आप ऑब्जर्व करते हो तो आप सारे करते हो या मतलब 500 के वो मतलब 500 के मल्टीपल में वो लोग 500 के ही मल्टीपल वाले बाय करते हैं, क्योंकि तो उसमें जैसे आज 43,800 है, उसके नीचे सारे 43,500 43 ऐसे 500 के नीचे के सारे ऑब्जर्व करना होता है। पेनी पेनी वाले जो 3-4 रुपए वाले रहेंगे ना, हाँ जी जैसे 43,800 पे है तो 43 भी छोड़ देना, 43,500 43 भी छोड़ देना, 42,500 एंड नीचे, मतलब हजार हाँ जी 1,015 पॉइंट छोड़ देना। उसके नीचे का जो सारा रहेगा ना, वो लोग वो बाय करते हैं। इतने इतने ठीक है पास का ओके नहीं बाय करते वो लोग, क्योंकि इतना पास में थोड़ा प्रीमियम रहता है। राइट राइट राइट। और सर दूसरी बात है 43,800 फुट तो वैसे भी पूरे दिन बाइंग में आया ही नहीं था ना देव प्रो में, अगर अपन देखें हाँ पुट तो बाय में आया ही नहीं था। आया ही नहीं था ना। हाँ हम्म। अभी कोई किसी को कुछ नहीं मालूम ना, तो सिर्फ वो डेप्रो भी कर लेता ना, तो भी उसको आ जाता। और अगर थोड़ा बहुत किसी को
वो है कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स का थोड़ा मिला के और डेटा रीडिंग में है। ये क्या है ना कि बताना आसान है मेरे लिए, बट ये एक्चुअली में इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करो उतना ज़्यादा इंट्यूशन से ही आ जाता है, कैच हो जाता है। दूसरा चीज भी सीधा इस पे चलते हैं। फाइनेंशियल्स वाला कहाँ है? तो ऐसा ना, ये सब लगा रहता है। ये आईटी का है, ये एमएनसी है, ये रियलिटी। मैं फाइनेंशियल्स का ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया यार? हाँ, ये रहा। सर ये सेक्टर रोटेशन का ये इंडिकेटर कहाँ, कौन सा इसमें मिलेगा? ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है सर। अच्छा, हाँ, तो इसमें कौन सा इंडिकेटर लगाना है सर? नहीं, ये आपको पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा सर। ये मैंने अपना प्राइवेट कोड किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये ना तो आप शेयर करते हैं? क्या कह रहे हैं? आपकी शेयर करते हैं ये वाला? हाँ, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। तो इसी प्रोसेस में ये एसबीआई लाइफ था, अगर किसी को याद हो तो। ये क्या था कि इसमें ये रेजिस्टेंस लाइन है प्राइस एक्शन वाइज। आप ये पर्पल लाइन जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, ठीक है, फिर ये सपोर्ट टूटा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप मेरा मैसेज भी देखेंगे तो मेरा मैसेज यहाँ पे आपको कहीं मिला होगा ब्रेकआउट से जस्ट पहले, इस कैंडल पे, ठीक है। चाहिए तो अभी चेक कर सकते हो। ये इस कैंडल पे 1:15 बज रहे थे, 1:15 के अराउंड होगा। तो अभी ये 1:15 बजे कैसे आ गया रेडार में ऑल ऑफ अ सडन बाकी पूरी मार्केट में से? तो नंबर वन, सीएनएक्स फाइनेंस जो था, मतलब फिन निफ्टी, वो तेज हो रहा था, वो लीडिंग में, इंप्रूविंग से लीडिंग जा रहा था। तो उसी उसी टाइप से ये इस पे भी एक नज़र थी कि फिन निफ्टी में क्या मूव हो रहा है। तो एक मिनट, मैं इसको रिप्ले, ये रिप्ले मैं बताता हूँ, इसको मैं कभी देखा। ये एसबीआई लाइफ है, ठीक है, ये मॉर्निंग में चल रहा है। मॉर्निंग में देखिए लैगिंग कैटेगरी में है, ठीक है। ये मॉर्निंग में ये गिर गुर गया नीचे, ये लैगिंग में चल रहा है। अभी होल्ड करिए, थोड़ा और आगे करता हूँ। अभी ये जा रहा है लैगिंग से इम्प्रूविंग में, आईसीआईसी प्रूडेंशियल के साथ ये एसबीआई लाइफ जा रहा है, ठीक है। जब तक मैंने आईसीआईसी प्रूडेंशियल देखा वो निकल गया था। तो भागा हुआ स्टॉक मैं बताता, मैं मतलब कभी डालता भी नहीं कि ये देखो ऐसा हो गया। तो यहाँ पे जब ये यहाँ था ना, तो प्रॉबेबली वो तब यहाँ था, ठीक है, एक एक बजे के यहाँ आसपास के बाद। तो तभी मैंने शेयर किया था कि एसबीआई लाइफ ये इस पर्पल लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, तो ठीक है, मतलब यू कैन कीप एन वॉच ऑन इट। ये उसके बाद मैं आगे प्ले कर देता हूँ। ये एंड ऑफ द डे कहीं यहाँ कहीं क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट लीडिंग में यहाँ कहीं क्लोज हो गया आईसीआईसी प्रूडेंशियल के साथ में। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इसको बेसिकली ऐसे ही पकड़ा था, जिसमें कि अगर आप देखेंगे कि आरएसआई और प्राइस एक्शन और जो कि लीडिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है उस पॉइंट ऑफ टाइम में। अभी ये सेक्टर्स क्या नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, ये सेक्टर्स जिनमें चेंज होते रहते हैं, कभी बहुत रेयरली होता है दिन, मतलब महीने में 2 या 3 दिन ही ऐसा मैंने देखा है कि दिन सुबह अगर मान लो आईटी शुरू हुआ है तो शाम तक आईटी ही चल रहा है। नहीं तो जैसे कि बिगर टाइम फ्रेम में सेक्टर रोटेट होते हैं ना, कि कुछ दिन आईटी चला, कुछ दिन फार्मा चला, कुछ दिन मेटल चला, ऐसे ही इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी ये रोटेट होते हैं, राइट। तो वो ये
ये ऐसे SBI लाइव था जिसका जिसको शेयर किया था, इसमें इसमें सर अराउंड इसमें SBI लाइफ में आपने कोई OI वगैरह से भी कंफर्मेशन लिया था क्या? मैंने नहीं देखा, पर देख लेते हैं। SBI लाइफ पी सेल का देख लेते हैं, 1260 एट द मनी का। तो आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पे खैर 1 बजे का राउंड ये जब मिला हमको, तब तक तो प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे आ गया था। कल एक्सपायरी भी है ना सर, तो अभी तो 15 पैसे का रह गया। बट अगर आप दिन में ही देख लिए होते इसको यहाँ कहीं ना, जहाँ से OI इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो कोई तो इसको राइट कर रहा था। करेक्ट। अपना डेप्रो का कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गया ना, ये जहाँ से OI इंक्रीज होना शुरू हो गया यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऊपर का स्ट्राइक देख सकते हैं जिसमें थोड़ा प्रीमियम हो, 1280। ये स्ट्राइक जो है ना, ये वो ही नहीं है, लिक्विड नहीं है। अब कल एक्सपायरी भी है ना, तो लिक्विडिटी में मिलेगी भी नहीं। हम्म। बट आप इसमें जो लेते हैं कैंडल का जो टाइम फ्रेम लेते हैं 15 मिनट्स का, राइट? ये इसमें सर सेक्टर रोटेशन में कह रहे हैं आप? हाँ, 15 मिनट का। हाँ, सेक्टर रोटेशन में 15 मिनट रहता है, नहीं तो वैसे मैं इंट्राडे में ये 5 मिनट्स यूज़ करता हूँ। यहाँ 5 मिनट्स है। अच्छा। हाँ, क्योंकि 15 यहाँ 5 मिनट्स करूँगा ना तो क्लैरिटी नहीं आती है। तो 15 मिनट्स में वो चलता है क्या? वो नेक्स्ट 15 मिनट्स भी जाएगा? मतलब एक रॉकेट को पूंछ में आग लग गई तो जाएगा ना ऊपर में पूरा, या फिर वापस तो नहीं बीच में आ जाएगा? नहीं, हमको तो यहाँ पे ये देखना है कि व्हाट इज मूविंग, व्हाट इज इम्प्रूविंग Oh, फर्स्ट। that's what I'm saying, na? Like first 15 minutes, okay, we got confirmation that SBI Life has moved from the lagging to improving, ऊपर की तरफ पहुंच गया. So हाँ, then we enter into some trade or something. नहीं नहीं नहीं, देन वी नॉट डोंट एंटर, वी विल सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, फिन निफ्टी इज moving or not. okay. Then within Fin Nifty, what is moving? Now let's say we narrow down to SBI Life. Okay. Then we will see कि प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन में देखा, अरे बहुत बढ़िया रेंज में है ये तो, है ना, ऐसा दिखा। हाँ, ये रेंज में है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब इतना तो बेसिक बेसिक सबको आता है थोड़ा बहुत। सारे लोज कनेक्ट कर लो, सारे हाइस कनेक्ट कर लो, ज्यादा ज्यादा हाई फंडा नहीं, थोड़ा बहुत टेक्निकल, ये बॉक्स बुक्स बनाना आता हो थोड़ा बहुत, तो उसमें तो क्लियर है फिर कि जैसे ही बॉस ये इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये रॉकेट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा मैकडी वैकडी लगा लीजिए, और रिट्रेसमेंट तो आएगा, तो इंडिकेटर, रिट्रेसमेंट आएगा. हाँ थोड़ा स्टैंडर्ड इंडिकेटर एक दो और लगा लीजिए, RSI मैकडी जो भी आपको पसंद हो। तो बस ये यही स्टाइल है सर। तो यही था अभी। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का मेन क्वेश्चन था, वो तो मैंने क्लियर कर दिया है, जिसमें आपको मैंने तीनों एस्पेक्ट से बता दिए। बट आई एम श्योर एक्सपायरी वाले दिन या एक दिन एक्सपायरी से पहले ये ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स मस्ट बी हैपनिंग, सडन अप सडन डाउन, और ये तो होता है सर, एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी में तो थोड़ा वॉलेटिलिटी रहती है, एंड रोल ओवर्स होते हैं, प्लस HDFC का न्यूज़ फ्लो चल रहा था आज। नहीं, कल जैसे रहा होगा ना, अभी इस बार थोड़ा सा बेरिश सा हो गया था, तो देयर विल बी लॉट ऑफ कॉल राइटर्स, नाउ दे हैव पुल्ड इट अप, सो ऑल कॉल राइटर्स विल बी अनवाइंडिंग. हाँ, अभी अभी सर यहाँ पे इतना ज़्यादा ये फुट फुट राइटर्स हैं ये। कल तो रहेगा ये, अभी तो कल तो ऊपर ही, नीचे तो नहीं आएगा कल तो. अभी ऐसे देख के तो लगता है, बट यू नेवर नो। You never know. अभी US It might, they might pull it down again. अगर नीचे पुल करेंगे तो बहुत जोर से नीचे आएगा सर, बहुत जोर से नीचे आएगा. Yes, yes, yes. Because they will be ये लोग prepared for it, ना? ये लोग ट्रैप हो जाएंगे ना फिर। You are trap हो जाएंगे. जैसे आज क्योंकि आज जिसने कॉल अनवाइंड किया होगा वो पुट में गया होगा. ऑफ कोर्स उसको अब थोड़ा ये- तो लॉस कवर करना है ना सर। तो उसको नीचे भागेंगे तो फिर वहां काटे वहां खाएंगे उसको. बहुत
ऐसा बहुत ये लो विक्स में ज्यादातर होता है सर, क्योंकि हाई विक्स में क्या है ना, वन साइडेड रेंज अच्छा निकलता है। लो विक्स में वो ऊपर भी मारता है नीचे भी मारता है, और बहुत दिनों से ऐसा हो भी रहा है। एक दो दिन ऊपर ले जाएगा, फिर 2-3 दिन आपको नीचे ले जाएगा। ये तो सर कल एक्सपायरी, कल कल भी ऐसा एक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी है होने की ना? सर मैं बिल्कुल भी कोई प्रीवियस डे एनालिसिस वो नहीं, व्यू नहीं फॉर्म करता हूँ। चलती मार्केट में क्या हो रहा है ना, वही वही मैटर सही करता है। राइट 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 सर। अभी मैं बोलूंगा कल कि अगर कल कल, अगर डाउन होगा या कुछ होगा ना, तो इसमें ये देखने में मजा आएगा। then हाँ, then हाँ we can try to think, I mean, कल अगर डाउन जाएगा uh, तो सबसे पहले क्या यहाँ पे आएगा वो, कि ये यहाँ से लैगिंग में हाँ, जा रहा है। ठीक है, अगर मैं फ्री रहा तो मैं कल बता दूंगा कि गुड साइड जाना है कि कहाँ जाना है। ठीक है, और ये क्या है ना, ये अपना पे ट्रेड भी था ना, तो पे ट्रेड में भी जो इतने दिनों से चल रहा है 22 जून से, तो उसमें भी है ना बैंक निफ्टी लॉन्ग साइड पे ही है। तो ये, हालांकि पे ट्रेड इज अ डिफरेंट लॉजिक, मैं इसको इंट्राडे से मिक्स नहीं करना चाहता हूँ कि इंट्राडे में मूव आया, बट अगर आप पोजिशनली देखो ना, तो बैंक निफ्टी पोजिशनली निफ्टी को आउटबीट कर रहा है इस दिन से। ठीक है, तो पे ट्रेड में भी ये चल रहा है ऐसा, तो दिस बिकम्स वन मोर सपोर्टिंग डेटा पॉइंट की बॉस, अगर मार्केट ऊपर जाना है और बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी लीडिंग निफ्टी में, निफ्टी भी ऊपर जाएगा बट बैंक निफ्टी ज्यादा जोर से ऊपर जाएगा। तो जो ट्रेन ज्यादा फास्ट जा रही है राजधानी, तो हम तो राजधानी में बैठेंगे ना। करेक्ट करेक्ट सर। बस यही है, ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, इट ऑल फॉर्म्स वन व्यू टुगेदर एंड देन मल्टीपल कंफर्मेशंस आ जाते हैं। and it only matters in which train you are, up or the down one. हाँ, लास्ट में यही मैटर करता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो विल एंड दिस कॉल। थैंक यू मोहित जी। एटलीस्ट वी विल एटलीस्ट गेट समथिंग टू ऑब्जर्व गोइंग फॉरवर्ड ना, एटलीस्ट मतलब ऑब्जर्व तो करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, अभी के हिसाब से ये रेंज है सर 1000 पॉइंट की, नीचे में 43,600 और ऊपर में 44,600। ये कब का बनाया है? फॉर टुमारो, हाँ, एक्सपायरी के लिए। एक्सपायरी के लिए। हाँ, अगर कल जैसे लगेगा कि ये वाली रेंज के बीच में चल रहा है ना मार्केट, तो मैं आपने 1000 का रेंज बनाया है, 1000 का बनाया है। नहीं मैंने नहीं बनाया, ये अपने आप आएगा ये। आया निकल के आया, and it is at 44,164 now. हाँ, ये डायनेमिक है सर, क्या ये ऊपर नीचे होएगा ना, और जैसे 500 up and 500 down. So yeah. 500 up and kind of 700 down. This is based on VIX or this is based on the premiums? This is based on VIX, current spot, and time remaining is just 1 day. So उसके हिसाब से it's likely expiry, Awesome observations. Huh? Awesome. एक्सपायरी यहाँ होगी। 10 में से 8 बार होती भी है सर, एक दो बार ऐसा गूगली कर हो जाता है इसके साथ भी, बट नॉनदलेस जो भी है, मार्केट इज डायनामिक, अगर पलट जाए तो तुरंत पलटना जरूरी है। लेकिन बैंक निफ्टी की तो रग रग से वाकिफ हो गए आप। अब बैंक निफ्टी ज़्यादा करता हूँ मैं, इसलिए मेरे को उसका मालूम है। So you are able to go with the market at times. You are able to trade also. या करते हो? अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है ना, स्क्रीन टाइम दे सकता हूँ थोड़ा सा, तो इंट्राडे नहीं तो फिर वो जो पोजिशनल वाली रहती है ना सर, वही कुछ करते हो, स्प्रेड है या कुछ वो है, आयरन फ्लाई वगैरह, कैलेंडर। Chalo, great. I think thanks a lot. I think others, if anybody else. Thank you. थैंक थैंक यू, यू थैंक यू Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू, गुड नाइट। Thank Good you. night. Good night. Good night, everyone. Thank you. Good night. नाइट, Thank you, boss. थैंक यू, बाय।